Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Cant. Today we are going to start with a new chapter, Neural Control and Coordination. This is chapter number 21 of the NCERT textbook of biology. In the revised syllabus as per the CBSE for class 11 2020-21 session, there are only two main topics which are being covered in this chapter, Neural Control and Coordination. One is nerves, neuron and nerve impulse, and the second one is CNS. Today we are going to start with nervous system and main parts of nervous system. So let's start. Now you must understand first of all what are the functions of the nervous system. Now nervous system helps in controlling and communication between the different parts of the body. It monitors the changes. So whatever changes occur outside, so those impulses are accepted by the nervous system. And the processing and interpretation of the output is also done by the nervous system. So a response generation is also done by the nervous system. It works closely in conjunction with the endocrine system, which involves the hormones. Meninges. Meninges, as you know, are the coverings of the nervous system. Now, there are three layers which cover it's written here, the three layers that lay directly on the surface of the brain tissue and spinal cord. They offer a cushioning effect. So, you know about the three meninges are dura mater, arachnoid, and pia mater. The outermost is called as the dura mater, which is thick and fibrous. The second one is arachnoid, which is the middle layer, and the innermost layer is called as the pia mater. Arachnoid is quite thin, while pia mater, which is mesh-like and vascular. Vascular means it has the blood vessels. Now, between the meninges, there are spaces which are extradural, subdural, and subarachnoid spaces. There are three major divisions of the nervous system. The first one is called as the central nervous system. The second one is called as the peripheral nervous system. And the third is called as the autonomic nervous system. Autonomic nervous system is further divided into two main parts, sympathetic and parasympathetic nervous system. First of all, we're going to study about the central nervous system. Central nervous system consists of the brain and the spinal cord. So because they are located in the center of the body, this is called as the central nervous system. It acts as a switchboard that controls and coordinates the activities of the whole nervous system. So whatever is going on in the nervous system is controlled by the brain and the spinal cord. Peripheral nervous system. Peripheral. As you know, peripheral means towards the periphery, in the sides. So what is the purpose of peripheral nervous system? It is present throughout the sides. That is, it is made up of nerves which are present all over the body, which carry the messages which are sent from the different body organs to the brain and spinal cord, and from brain and spinal cord to different parts of the body. Now, the brain and spinal cord, as I talked, make up the central nervous system, or what we call as CNS. So all stimuli from the sensory receptors, as you know, the sense organs have receptor cells. So these sensory receptor cells receive the stimulus of whatever is happening outside you, and these stimuli are then sent to brain and the spinal cord. So whatever जितने भी यहाँ पर responses generate होते हैं, जितने भी आप लोगों के आसपास के environment में जो कुछ भी change हो रहा है, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो सब आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कन्वे किया जाता है, और आगे आपको क्या आउटपुट देनी है, क्या एक्शन लेना है, वो प्रोसेसिंग के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, और ये सारा काम करता है आपका CNS. Then we come to autonomic nervous system. Autonomic nervous system, always remember, is also known as the visceral nervous system. So don't confuse between the two. ये दोनों एक ही है. Autonomic का मतलब क्या है? Autonomic का मतलब ये है कि आपके organs जो हैं, जो visceral organs हैं, उनको खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं वो. तो इट इज इनवॉलेंट्री कंट्रोल. कुछ चीजें हैं जो आप वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहे हो, जैसे अपने हाथों को, पैरों को आप वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, चल सकते हो, अपने हाथों के एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक. दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो यहाँ पर देखिए आप, कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज. तो जितनी भी हमारी हार्ट, ग्लैंड्स, ब्रीदिंग, डाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसी को हम विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इट कंट्रोल्स द स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स which make up the viscera of the body. Now, autonomic nervous system, as I told you, is divided into sympathetic and parasympathetic. So let's talk about sympathetic system first. Sympathetic responds to the body's needs during increased activity and in emergencies. तो जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या कोई इमरजेंसी है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम. जैसे कि आपकी हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ जाना, रेस्पिरेशन का बढ़ जाना, या बहुत सारी और अनकॉन्शियस एक्टिविटीज हैं. जैसे देखिए, डायलेट्स ब्रोंकाई, एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा and dilates pupil, inhibits peristalsis and secretion, conversion of glycogen to glucose. Glycogen to glucose is called as glycogenolysis. This helps in the increase of glucose level in the blood and thereby increasing the amount of glucose and availability of energy. Now, secretion of adrenaline and noradrenaline, as you know, these are the emergency hormones. So, emergency के लिए body को prepare करने के लिए भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ काम करता है विद द हार्मोनल सिस्टम. इसी तरह से ये इनहिबिट्स ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है. नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक भी इनवॉलेंटरी है, लेकिन ये ऑपोजिट एक्शन करता है. तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एग्रावेट कर देता है चीजों को सिंपैथेटिक, तो हमें काम डाउन करने का काम, शांत करने का काम कौन करता है? उस चीजों को पैरासिम्पैथेटिक करता है. तो अब यहाँ देखिए, बिल्कुल उल्टा चलेगा. ये एक्सेलरेट कर रहा है हार्ट बीट को, ये स्लो कर रहा है. ये इनहिबिट कर रहा है फ्लो ऑफ सलाइवा को, ये स्टिमुलेट कर रहा है. ये डायलेट कर रहा है प्यूपिल को, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा. ऐसे ही ये डायलेट कर रहा है ब्रोंकाई को, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा. ये इनहिबिट कर रहा है पेरिस्टाल्सिस को, जबकि पैरासिम्पैथेटिक पेरिस्टाल्सिस सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा. यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, जबकि ये क्या रिलीज करेगा? बाइल के रिलीज में हेल्प करेगा. यहाँ पे ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगी, जबकि यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर को बढ़ा देगा. नेक्स्ट, नाउ ब्रेन, एज यू नो, इट इज द ऑर्गन ऑफ थॉट एंड फीलिंग. सो जितने भी हमारे नर्व इंपल्स को रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना, उनको कमांड देना कि क्या आगे मैसेज आपको क्या काम करना है, सो ये सब काम जो है ये ब्रेन करता है. इसको हम अगर फिजिकली हम उसको डिवाइड करें तो तीन मेन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, सेरिब्रम, सेरिबैलम और ब्रेन स्टेम. लेकिन ऑल्दो यू नो दैट ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो फोर ब्रेन का ही सबसे इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट पार्ट, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम. Second largest part है cerebellum, which is a part of the hind brain. Now let's talk about cerebrum. As I told, it is the largest part of the brain. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अगर हम ब्रेन को देखें तो दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है, जैसे हेमिस्फीयर्स कहते हैं. जैसे हमारी अर्थ के दो हेमिस्फीयर्स हैं, इसी तरह से हमारे ब्रेन के भी दो हेमिस्फीयर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रीजन जो है ऑक्यूपाई करता है सेरिब्रम. बल्क ऑफ द ब्रेन इसी का बना हुआ है. तो जितने भी हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, हमारी मेमोरी, जजमेंट, रीजन, ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम. नाउ ये जो आप फोल्ड्स देख रहे हैं, इन फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज द गायरी एंड सल्काई. तो जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड एज गायरी, और जो नीचे की तरफ यहाँ फोल्ड, इन फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज सल्काई. सो इन्हीं की वजह से जो ये आपको सारा जो नजर आ रहा है ब्रेन का, जो ये फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ गायरी एंड सल्काई. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, जिसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब, जो कि आपकी आगे की तरफ लोकेटेड है ब्रेन के. जो आप कह सकते हैं कि जो आपका ये फोरहेड है, फोरहेड के पीछे जो पूरा पोर्शन है, दैट इज द फ्रंटल लोब. ये हमारा कंट्रोल करती है हमारी प्लानिंग को, कॉन्शियसनेस को, स्पीच को, जो आप बोलते हैं उसको, मेमोरी और रीजनिंग कैपेसिटी को. नेक्स्ट है हमारा पैराइटल लोब. यहाँ देख सकते हैं आप, दिस इज पैराइटल लोब. पैराइटल लोब जो है, इसमें कंट्रोल सेंटर्स होते हैं रिलेटेड टू सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर, टेक्सचर, साइज, शेप एंड वेट से रिलेटेड जो आपका कंट्रोलिंग सेंटर है वो पैराइटल लोब में होता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब. ऑक्सीपिटल लोब आप देख सकते हैं, इट इज लोकेटेड एट द बैक, पीछे की तरफ लोकेटेड है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टिमुलस ऑफ साइट. साइट को रिसीव करता है और यहीं से ही आपका इंटरप्रिटेशन होता है कि आपने क्या देखा. ऑक्सीपिटल लोब.
नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब, ये आपके ईयर के पास है, देखिए हियरिंग, यहाँ पर आपका ईयर लोकेटेड है, ईयर के साथ ही लोकेटेड है आपका टेम्पोरल लोब, जो कि आपका सेंटर है फॉर प्रोसेसिंग एंड कोरिलेशन ऑफ द ऑडिटरी। तो जितना भी आपका हियरिंग का काम होता है, स्मेल का काम होता है, दैट इज थ्रू द टेम्पोरल लोब। इसीलिए कहते हैं डॉग्स के अंदर टेम्पोरल लोब डेवलप्ड होता है, सो दे हैव अ हाई सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट इज सेरेबैलम, तो आपकी बॉडी का आपको पता होगा पोस्चर बैलेंस जितना भी मेंटेन होता है, दैट्स थ्रू द सेरेबैलम। ये आपके ऑर्डर्स को रिसीव करता है फ्रॉम द सेरेब्रम और उसी के हिसाब से एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम बना होता है हमारी मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला का, इसी से ही आगे जाकर हम कनेक्ट करता है हमारा ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ ब्रेन स्टेम का फर्स्ट मेन पार्ट है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो कि आपका मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसके 3 मेन डिविजन्स हैं और ये मेन कंट्रोल करता है आपके मूवमेंट ऑफ आईज के एंड साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर 4 लोब्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। Now, next part of the brainstem is medulla oblongata. Medulla oblongata is also a part of the hind brain. ये ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे लोएस्ट पार्ट है और ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स, पॉन्स अगेन इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही एक पार्ट है, लार्ज पार्ट है, लेकिन ये एक्चुअली मेडुला का पार्ट नहीं है, ये एक अलग सेपरेट पार्ट है। ये मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में लोकेटेड है पॉन्स। फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है, ये रिले करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिबेलम, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर आपको याद होगा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉन्स, रोल ऑफ पॉन्स इन ब्रीदिंग, और इसी तरह से ये कंट्रोल करता है हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है पॉन्स। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एज आई टोल्ड यू इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीएनएस, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्वस टिश्यू का बना हुआ और इसके आसपास भी मेनिंजेस, लेयर्स, कवरिंग्स प्रेजेंट है, और बाहर जैसे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है अंडर द स्कल, हमारी स्कल के अंडर प्रोटेक्टेड है, पूरा स्कल के जो पार्ट जिसके अंडर ब्रेन है दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। सिमिलरली पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो पास ऑन करता है थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, और हर वर्टिब्रे एक तरह से क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। दी सीरीज ऑफ वर्टिब्रे गिव प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज लोकेटेड इन बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम। Now, what is the purpose of spinal cord? It allows the signals to be sent from the brain to the parts of the body. It receives messages from the parts of the body and sends them to the brain. तो जितना भी रिसीविंग करना है, ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से मैसेज को आगे ले जाना, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, वो स्पाइनल कॉर्ड का काम है। और आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इट हैज द, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए भी। तो जितने भी आपके बहुत ही इमीडिएट एक्शन होते हैं, जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई और आपने अपने पैर को पीछे खींच लिया, या फिर किसी गर्म चीज को हाथ लग गई आपने पीछे खींच लिया, दीज रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर जो हमारे वर्टिब्रे नजर आ रहे हैं, तो इनके बीच में से पास ऑन कर रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रे के अंदर से क्रॉस कर रहा है। यहाँ बीच में सेंटर में एक एच शेप्ड का ग्रे मैटर होता है। जो ये ग्रे मैटर है ये बेसिकली कंटेन करता है सेल बॉडीज ऑफ द नर्व सेल। तो जितने भी न्यूरॉन्स है उनकी सेल बॉडीज यहाँ लोकेटेड होती है ग्रे मैटर के अंदर, और बाहर का जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या कंटेन करता है, ये नर्व फाइबर्स को कंटेन करता है जिनके आसपास रहती है माइलिन शीथ। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल, एज आई टोल्ड यू, पेरिफेरी मीन साइड्स में जो काम करता है, जो कि मैसेजेस को सीएनएस से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। तो ये बेसिकली कंसिस्ट करता है नर्व से मिलकर बना हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो मेन टाइप की नर्व्स लेते हैं हम ये यहाँ पर, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियम जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्रेनियम मींस जो ब्रेन की कवरिंग है। तो ब्रेन से जो अराइज होती हैं जितनी भी नर्व्स, दे आर कॉल्ड एज द क्रेनियल नर्व्स। जैसे कि यहाँ एग्जांपल आपको गिवन है, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी जो कि आपकी नोज से अराइज होती है, ऑप्टिक नर्व जो कि आपकी आईज से अराइज होती है। तो ये जो लेकर जाने का मैसेजेस का काम है, दीज आर डन बाय क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं। ऐसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है, जो कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड और अलग अलग सेंस ऑर्गन्स को, दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास 12 पेयर्स,
जबकि स्पाइनल नर्व्स के होते हैं 31 pairs of spinal nerves are present in the human body. That's all for today. God bless you all.